So hello students, welcome back to my next video lecture, and in this video lecture we are going to discuss solutions of solid in liquids। कि जब भी आप किसी लिक्विड में एक सॉलिड सल्यूट लेके डिज़ोल्व करवाते हो उस टाइम जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स हमें स्टडी करनी है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड। फर्स्ट ऑफ ऑल, the first topic is solubility of solid in a liquid. What is the meaning of solubility of solid in a liquid is the maximum amount of solute, that is solid, because you are studying solid in liquid. The maximum amount of solute in grams which can be dissolved in 100 gram of the solvent to form saturated solution at that particular temperature. जिस particular temperature पे ये आप study कर रहे हो, so at that particular temperature if you take 100 gram of solvent, then how much solute in grams that you can add into this so that it keeps on dissolving, और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो घुलना बंद हो जाएगा और उस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए कितना सोल्यूट घुल जाएगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड एज द सॉलिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड in that particular liquid which you are talking about. Okay, clear? So next is factors those affect solubility of the solid in liquid. Okay, so in case of factors we are going to study two types of effect which are going to affect solubility. First factor is nature of solute and solvent, कि उनका नेचर कैसा है, और सेकंड फैक्टर जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी दी टेम्परेचर, कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट दी सॉलिबिलिटी। ओके, सो नेचर के केस में हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। ओके, means similar type of solutes are going to similar type to get dissolved in similar type of solvent. It means जो आपके पास covalent solids होंगे जिनको आप एज ए सल्यूट लोगे, they are going to get dissolved in covalent liquids. For example, जो iodine होता है वो बेंजीन में more soluble होता है rather than water, because benzene is a covalent liquid whereas water is also a covalent but that is polar covalent. Okay, but iodine is a non-polar covalent molecule, and similarly benzene is also a non-polar covalent. So it means, and similarly polar or ionic solids are going to get dissolved in the polar or ionic liquids, because ionic is also the extreme case of polar. Okay, clear? For example, NaCl is more soluble in water than benzene, क्योंकि वाटर में क्या होता है, वाटर इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल, पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं। ओके, पार्शियल चार्जेस आर देयर। और NaCl क्या होता है, NaCl भी आयनिक होता है, और आयनिक इज ऑल्सो एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर, तो इसलिए NaCl इज मोर soluble इन वाटर rather than benzene. So let us explain this solubility explanation. First of all, we are going to explain solubility of polar compounds, or you can say ionic compounds in the polar liquids. What is the mechanism behind that? Okay, for ionic compounds, if solvation energy is greater than the lattice energy, then the compound dissolved in that liquid, otherwise not. Okay, so first of all, what is the solvation energy and what is the lattice energy? Okay, the lattice energy क्या होती है, देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब अपने मॉलिक्यूल जब वो अपने सॉलिड फॉर्म में होंगे तो इनमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे आर बाउंडेड लाइक दिस। ओके, और इस बॉन्ड की वजह से एनर्जी रिलीज हुई होगी, NaCl की फॉर्मेशन के टाइम ये जो बॉन्ड बने हैं उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई होगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज दी लैटिस एनर्जी। ओके, 1 मोल NaCl जब बना होगा उस टाइम जितनी टोटल एनर्जी रिलीज होएगी फॉर दैट फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज दी लैटिस एनर्जी। ओके, बट जब हम डिजॉल्व करते हैं NaCl को, होता है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे आर गोइंग टू गेट डिसोसिएटेड, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल जो कि पोलर होता है और उसके ऊपर ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव होता है, वो अपने आप को ऐसे ओरिएंटेट करना शुरू कर देता है Na पॉजिटिव आयन के अराउंड लाइक दिस, कि नेगेटिव जो है उसका Na पॉजिटिव की तरफ फेस करे लाइक दिस। ओके, तो इनके बीच में अब ये बॉन्ड एस्टेब्लिश होने शुरू हो जाते हैं। जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, तो जब भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और सल्यूट के आयंस के बीच में इंटरेक्शन होती है उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, ओके, आफ्टर डिसोल्यूशन, दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एज दी
सॉल्वेशन एनर्जी। सिमिलरली जो क्लोराइड के आयन होंगे, क्लोराइड आयन के अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल कैसे ओरिएंटेट हो जाएंगे, लाइक दिस, कि उनका हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ इंटरेक्ट करे, लाइक दिस। ओके, और इस इंटरेक्शन में भी एनर्जी रिलीज होगी। ओके, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है। ओके, और इनके बीच में एक तरह की बॉन्ड एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, तो इस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी सॉल्वेशन एनर्जी। तो जब सॉल्वेशन एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन on due to the interaction of solute ions and solvent ion, if that energy released is greater than the lattice energy, okay, then only the compound which you are dissolving in the solvent is going to get dissolved, okay, otherwise not। क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए जिस एनर्जी से वो जुड़े हैं, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो नए वाले जो NaCl हैं जब वो आएंगे उनको तोड़ता जाएगा। ओके, क्लियर, क्योंकि तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी ना इस बॉन्ड को। So that's why only then the particular polar compound is soluble in that particular polar solvent. Next is, one more point which you have to note, that in case if H2O is a solvent, जब water as a solvent होता है तो solvation के लिए हम एक और word use कर सकते हैं, hydration, क्योंकि hydra word किसके लिए आता है, water के लिए। So at that time solvation, instead of calling solvation, you can also call it as hydration. Okay, and water is a polar molecule that is designated here. Okay, or next is, higher the dielectric constant of solvent, greater is the solvation energy. Dielectric constant depend upon how the molecule, solvent molecule, is going to get interact with the particular solute ion. ओके, जितनी ज़्यादा ये इंट्रैक्शन हो सकती है उतना ही ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं हम। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80.5 के अराउंड होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्वेशन एनर्जी। नेक्स्ट इज for non-polar compound. Okay, for non-polar compounds, the reason of the solubility is that similar solute solvent and solvent solvent interactions which are going to get established when you dissolve particular type of solute in particular type of solvent, क्योंकि उन दोनों का नेचर सेम है, तो इट मीन्स solute और solvent के बीच में इंट्रैक्शन आ ही जाएंगी। ओके, सो दैट्स वाई दे आर गोइंग टू गेट established, and this is how the non-polar compound dissolve in a non-polar solvent. Okay, now the second factor which you have to study is that the effect of effect of temperature on the solubility. Okay, first of all you have to understand that solute plus solvent mixing and after forming solution is a type of equilibrium, because in which solute and solvent is going to form solution. Okay, and this equilibrium is toward right and left both side. Okay, and going this side is called as the dissolution and going back side is called as the crystallization, क्योंकि सोल्यूशन से दोबारा सोल्यूट और सॉल्वेंट का अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टलाइजेशन, कि सोल्यूट क्रिस्टलाइज आउट हो रहा है सॉल्वेंट में। और डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिलकर सोल्यूशन बनाना। ओके, और जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है, एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन व्हाट हैपन्स, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तभी तो फर्दर सोल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाता है और हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। ओके, on the basis of effect of temperature on the solubility, three type of ionic compounds you can say. Okay, basically we are studying effect of temperature on solubility of ionic compounds. Okay, हम ionic compounds को majorly study कर रहे हैं इसमें। Okay, so there are three types of ionic compound on the basis of effect of temperature on the solubility. First one is those which is having solubility increased continuously with increase in temperature, जिनकी solubility temperature बढ़ाने से बढ़ती ही है। दूसरा वो जिनकी solubility temperature बढ़ाने से घटती है, ऐसे substances भी होते हैं, बट डे टू डे लाइफ में आपने मोस्टली ऐसे substances ऑब्जर्व करे हैं जिनकी solubility temperature बढ़ाने से बढ़ती है ना। बट ऐसे substances भी होते हैं हमारे पास, ऐसे compounds भी होते हैं जिनकी solubility temperature बढ़ाने से घटती है। और सेकेंड, घटती कैसे, बढ़ती कैसे कॉन्टीन्यूसली, और घटती कैसे है
वो भी कॉन्टिन्यूसली, मतलब उनका जो ग्राफ आएगा वो कॉन्टिन्यूस लाइन आएगा एक, या कर्व आएगा। ओके। बट एक थर्ड टाइप भी होती है जिनकी सॉलिबिलिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगी। मीन्स यू हैव टू सी सम डिसकॉन्टिन्यूटी इन देयर ग्राफ, उनके ग्राफ में कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिलेगी। इनके लिए एग्जांपल क्या है? सॉलिबिलिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंसेस के एग्जांपल क्या है? कि NO3, NaNO3। ओके। सो फॉर दिस टाइप ऑफ solutes, the reaction this reaction is like this, means heat is involved in the reactant side, means going from solute to solvent to solution side is a endothermic process, मतलब heat is required in case of reactants। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इट मीन्स यू आर गोइंग टू गिव हीट, तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टल प्रिंसिपल होगा क्या? ये इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर जाएगा। ओके। और इक्विलिब्रियम का राइट हैंड शिफ्ट करने का मतलब क्या है? दी सॉलिबिलिटी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल के सॉल्यूशन बनाएगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिकॉज हीट इज़ इन दी रिएक्टेंट साइड। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से हीट बढ़ती है, और जब हीट बढ़ेगी और जब भी रिएक्टेंट साइड में कुछ बढ़ेगा, दैट इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू गेट शिफ्टेड टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड। ऐसा ही होता है, ली चैटल प्रिंसिपल में यही बोला गया था। ओके। एंड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स इट। ओके। एंड फॉर दिस टाइप ऑफ react solutes, for example sodium carbonate decahydrated, or you can say cesium sulfate. In case of cesium sulfate, for this type of solutes, solute plus solvent when give solution there is evolution of heat, means going from this side to this side is exothermic in nature। Okay, so if you are going to increase the temperature, it means you are giving heat, and heat is the product, and according to Lee Chartle principle, if product concentration is increased, the reaction shift backward, if the reaction shift backward it means crystallize is going to get increased, crystallization बढ़ेगी, और crystallization बढ़ने का मतलब क्या है? का solution कम से कम बनना शुरू होगा। ओके। तो it means solubility is going to get decreased। ओके। और इन केस ऑफ ऐसे वाले जो सोल्यूट होते हैं जिनमें सॉलिबिलिटी नीदर इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली, ओके, उनमें होता क्या है? स्टार्टिंग में जैसे आप इसकी एग्जांपल लेंगे हम, स्टार्टिंग में वी टुक वेट स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में वी टुक सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। ओके। इसकी अपनी सॉलिबिलिटी कब होगी? जैसे इसकी अपनी सॉलिबिलिटी कब होगी? आफ्टर सम टाइम, मान लो एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर में ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज डिफरेंट फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। इसकी सॉलिबिलिटी का ट्रेंड अपना होगा, तो इसके लिए अलग से पीक होगी, तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होगी ना। ओके। मीन्स ऑन हीटिंग सब्सटेंस चेंजेस टू अनदर फॉर्म हु बिहेव डिफरेंटली विद टेम्परेचर, उसका बिहेवियर टेम्परेचर के साथ डिफरेंट होगा, उसकी सॉलिबिलिटी का बिहेवियर विद टेम्परेचर डिफरेंट होगा। ओके। हम इसको विद द हेल्प ऑफ ये ग्राफ समझते हैं। ठीक है। जैसे कि NO3 क्या है? सॉलिबिलिटी ये है अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, टेम्परेचर अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सॉलिबिलिटी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड एंड इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। सिमिलरली फॉर NaCl, सिमिलरली फॉर KCl, लीनियर मूवमेंट होनी है कि कर्व वाली मूवमेंट होनी है, एक्सपोनेंशियल मूवमेंट होनी है, दैट डिपेंड अपॉन। ओके। क्लियर। और सिमिलरली कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया? सीजियम सल्फेट। सीजियम सल्फेट के केस में क्या हो रहा है? जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सॉलिबिलिटी नीचे को आ रही है। यहाँ पे सॉलिबिलिटी वाई एक्सिस में दी हुई है, सॉलिबिलिटी पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना। शुरू में 20 थी ज़ीरो पे, जब टेम्परेचर 100 हुआ तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 6 to 7 रह जाएगी ग्राम पर 100 ml। ओके। और ये वाली एग्जांपल है जिसमें डिसकॉन्टिन्यूस सॉलिबिलिटी कर्व्स देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने बात करी थी सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड की, तो 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब तक नहीं आता तब तक तो वो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड रहता है, और उसके लिए कर्व ये है। बट आफ्टर अटेनिंग दी 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड अब डेकाहाइड्रेटेड रहेगा ही नहीं, वो अपने 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा एंड इज गोइंग टू फॉर्म दिस सोडियम सल्फेट, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट। और एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट टेम्परेचर के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है, तो उसकी सॉलिबिलिटी कब ये शुरू हो जाती है। ओके। क्लियर। सो डिसकॉन्टिन्यूटी, एक ब्रेकेज देखने को मिला आपको। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंस
in which the solubility is not going to increase or decrease continuously. ओके, क्लियर? मतलब जैसे मान लो आपके पास कोई और एग्जांपल है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ देर तक वो ऐसे मूव करता रहा क्योंकि वो एक्स फॉर्म में था, जब वो वाई फॉर्म में बना तब वो ऐसे मूव करना शुरू कर दिया, हो इंक्रीज ही रहा है, ठीक है, बट द ट्रेंड changed a bit. So that's why this point, which is called as the discontinuity point, appears. Okay, because you are now observing a different substance. So this is all about solubility of solids in liquids and the factors which affect the solubility of a solid in a liquid. So okay, thank you students.